All right. Everyone can see the screen. Miss. All right. तो पहला क्वेश्चन मैंने टेस्ट का पूछा था. Blood vessel that brings the blood from the body parts. आपने क्या लिखा है आंसर? Vein. Very good. And I am expecting this answer. I am expecting this answer because vein ही लिखना है आपको. Question ये पूछा है, which blood vessel brings the or collect the blood from the body parts. तो आपका आंसर वेन्स होना चाहिए. सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा नहीं होना चाहिए. सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पे सारे वेन्स जॉइन होते हैं एंड फिर वो राइट ऑरिकल में ओपन होता है. तो सारे बॉडी पार्ट्स में तो वो दोनों वेना कावा नहीं लेकर आते ना, सारे बॉडी पार्ट्स में तो वेन लेकर आते हैं. द प्रोसेस बाय विच WBC एनगल्फ्स बैक्टीरिया. आपने क्या लिखा है पहले ये बताओ. Phagocytosis. Yeah, phagocytosis. 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 All right. The site of the production of RBCs in the human embryo. Liver and spleen. Exactly. Liver and spleen. Correct. किसको मिला right answer? Very good, Priyam. That's nice. सबको मिला होगा. मुझे मिला. सबको मिला होगा. Right मिला. Right? क्योंकि दोनों आएगा liver and spleen. Okay. Good. चलो analogy type of question. Vein superficial है. Artery Deeply seated. deeply seated. Very good. Nice. Auricles receiving chamber. Ventricles Pumping. Tending. distributing. प्रथम मैंने clearly लिखवाया था. याद है जब मैं पढ़ा रही थी मैंने वहां पे लिखा भी था कि auricles are receivers distributing and ventricles are distributing chambers. मिस पंपिंग लिखेंगे तो चलेगा. हाँ मिस. हाँ पंपिंग चेम्बर्स लिखोगे तो भी. बट देखो रिसीविंग के साथ डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्ड प्रॉपर जा रहा है ना ऑपोजिट. Yes, miss, got it. तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिंग लिखो. ठीक है. तनीश English antonyms English. Yes. It is all about English. Huh, Tanish? Opposite words. Antonyms. Yes. Okay. Give exact location of chordae tendineae. Anyone would like to give me the answer for this? Yes, Pratham. they are found within ventricle of the heart. Oh my God. Look who is there in my lecture. Shahid Khan. Shahid, can you just repeat your answer once again? And they are found within the between the heart. They're found between the heart. Wow. दिल पे छुरा मार दिया आपने. I'm sorry, this is on the record. Okay, chordae tendineae. Anyone? Pratham, please. Pratham. Arising from the muscular projections of ventricular walls, known as papillary muscles. फिर से एक और बार. Arising from the muscular projections of ventricular walls, known as papillary muscles. प्रथम, लेकिन आपने उसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिखा? टेंडिनियस कॉर्ड्स. टेंडन से बना हुआ है ना. स्टार्टिंग में लिखा है. अच्छा लिखा है ना, पक्का ना, श्योर ना? ओके. शाहिद आंसर पता चला? It is not between the heart. These are tendinous cords which are arising from the papillary muscles of the ventricular walls. हाँ. आपने मेरा पेपर तो चेक ही नहीं किया. मैंने? अब शाहिद खान हो, मैं आपका पेपर कैसे चेक कर सकती हूँ? Miss, I have not checked anyone's paper. Okay, the answer keys were given and it was been checked by my expertise. हाँ रुद्र बोल.
मैंने तो अपलोड किया था पर वो टर्न इन करना है भूल गया। क्या क्या करना पूरा ये एक मेरा पागल बच्चा है, देखो ये एक पागल है। रुद्र तुम्हें देखती हूँ ना, सच्ची बता रही हूँ, मुझे मेरी बेटी की याद आती है। तू और मेरा बेटा एक जैसे हो, सेम टू सेम। आधी तो दुनिया के बाहर रहते हो दोनों जन तो टर्निंग नहीं करोगे तो चेक कैसे होगा रुदू? वो मैं भूल। ऐसे नहीं करना बेटा, देखो टेस्ट के मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो ठीक है। Chord and tendine. Tendinous cords which are arising from the muscular projections of the ventricular walls called papillary muscles. Please do not forget to write down the structure as well. All right. And you need to mention muscular projection called papillary muscles. ये लिखना पड़ेगा. Next, coronary arteries. कौन आंसर देना चाहेगा? Quickly, fast. सौम्या, सौम्या, आप आंसर दोगे? मिस मेरा गलत था आंसर। ओ ओके ओके। शुभ? मिस मेरा भी गलत है आंसर ये वाला। कैसे गलत है? टिया आपने क्या लिखा है? मैम मेरे को वो नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। अच्छा ओके। अमान आपने ट्राई किया लिखना? मैम मैंने किया था। ओके ठीक है, जिससे लिखा है, जिसको राइट मिला है वो मुझसे डिस्कस करें। बेस ऑफ एओर्टा। बेस ऑफ एओर्टा लिखा है और आपको राइट दिया? हाँ मिस मुझे भी। वही वो मेरे एक्सपर्टी ने चेक किया ना, मेरे पास आता तो शायद मैं ये भी ना देती मैम पूरा आंसर लिखा है, कोरोनरी आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा। ओके तो ऐसे पूरा आंसर बोलना प्रथम। ओके सो द आंसर इज 2 coronary arteries. How many? 2 coronary arteries. 2 arteries arising from the base of the aorta. Arising from the base of the aorta. What are you going to write down? 2 arteries arising from the base of the aorta. You need to mention 2 arteries. Hello. You need to mention. मिस मैंने 2 आर्टरी नहीं लिखा। You need to mention 2 arteries. 2 arteries लिखना ही पड़ेगा. How many number of arteries are arising? You need to mention it. Okay, ये तो अभी फिलहाल एक्सपर्टी चेक कर रहे हैं हमारे, तो इट इज ओके। बट अगर मेरे पास आएगा तो मैं एक एक वर्ड पे ध्यान देने वाली हूँ, ट्रस्ट मी। ओके जस्ट टेक मी सीरियसली। मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व किससे लिखा है, किसको राइट मिला है? मैम हाँ आर्यन। Ma'am, in 2 arteries, for the coronary artery, I have also mentioned their function, and I have it's given right. So is that okay? फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। यस मिट्रल वाल्व, जल्दी। एनीवन? ओके आई गिव द आंसर। हाँ टिया बोलो बोलो बोलो, टिया बोलो। It is located between left auricle and left ventricle. अयो, these are 2 flaps or a cusp located at the aperture between left auricle and left ventricle. These are 2 flaps or cusp located at the aperture between the left auricle and left ventricle. हाँ रुद्रा? मिस मैंने लिखा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। नहीं गलत, चौकड़ी मार उधर। तेरा पेपर तो अभी लाइव चेक हो रहा है, चल चौकड़ी मार। रॉन्ग डे। मिस मैम अपर्चर की रॉन्ग डे रुद्रा, ये कंप्लीट ही रॉन्ग है। हाँ प्रथम बोलो। अरे दे दिया ना। वो फ्लैप्स लिखना कंपल्सरी। हाँ हाँ उसका स्ट्रक्चर लिखना कंपलसरी है। जहां पे स्ट्रक्चर मेंशन किया है वो लिखना है लोकेशन में। 2 flaps or a cusp located at the aperture between left auricle and left ventricle. Is that clear? मिस अपर्चर की जगह लोकेशन ओपनिंग लिख सकते हैं? हाँ हाँ ओपनिंग लिख सकते हैं। ओके एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व फंक्शन, जो अभी मेरे साथ पेपर चेक करना चाहता है अपना, वो चेक कर सकता है। आई एम डिस्कसिंग तो आप अपना पेपर चेक कर सकते हो। एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व फंक्शन क्या लिखा है? To prevent backflow of blood. To prevent the backflow of blood from the aorta back to the left ventricle. Superb. It prevents the backflow of oxygenated blood from the aorta into the left ventricle. Rudra चौकड़ी मार, 0 दे। Okay, I repeat, it prevents the backflow of oxygenated blood from the aorta into the left ventricle. ठीक है? ठीक है?
लिम्फ का क्या लिखा है फंक्शन? एनीवन जिसको राइट मिला हो? नो, लिम्फ का फंक्शन आएगा, it is a fluid which transport nutrients and respiratory gases to those parts of the tissue, or sorry, to those parts of the body where blood cannot reach. मैम मैंने ऐसा लिखा है, it supplies nutrition and oxygen to those parts where blood cannot reach. ये भी बराबर है ना? हाँ, ये भी बराबर है. मिस न्यूट्रिशन नहीं लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा तो रॉन्ग रहेगा ना? You need to write down with the nutrients. You need to write down. मैम बॉडी डिफेंस वाला पॉइंट. Sorry? मैम बॉडी डिफेंस में हेल्प करता है वो वाला पॉइंट. वो भी चलेगा. Yes, बराबर. पहले पॉइंट बोल. मैम आंसर की आपने कहाँ पे भेजा है? Priyam, point बोल. Shahid, I am discussing the paper right now. You can't just talk to me like this in the class. हाँ. Yes, Priyam. Lymph has white cells which help in body defense. Exactly. Lymph has white cells which helps in body defense and fight against the disease causing germs. थोड़ा और लिख तो, इतना लिख के छोड़ देते हो. चलो, left ventricle. Left ventricle has a thick muscular walls than the other walls of the heart. Why? Anyone? Because it has to pump blood to the other parts of the body with a high pressure. आपने ये आंसर लिखा है? To long distance. This is because it has to pump the oxygenated blood with a great pressure so that the blood can reach to all parts of the body. Okay, Kshitij. Okay. Swayam? Miss, left ventricle has to pump the blood in the entire body from heart to the legs, from the heart to the brain against the gravity, whereas the other walls of heart are thinner as they have to pump the blood to the next chamber. परफेक्ट लिखा है इसने. परफेक्ट. वापस बोल स्वयं, वापस बोल. Left ventricle has to pump the blood in the entire body from the heart to the legs and from the heart to the brain against the gravity, whereas the other walls of the heart are thinner as they have to pump blood to the next chamber or till the very next organ. Very good. परफेक्ट लिखा है इसने. सुपर. कहीं पे भी चांस नहीं दिया मार्क्स कट करने के लिए. सुपर. अगर सबका आंसर इसके जैसा है तो ही मार्क्स दो, वरना मैं बोल रही हूं चौकड़ी मारो. It has to be very precise. Left ventricle has to pump oxygenated blood to all the parts of the body, that is legs, till the legs or till the low toes and till the brain, that is against the gravity. Whereas other chambers have to pump the blood to the next chamber, to the very next chamber or to the nearby organs, and that's why it has a thicker wall. Superb Swayam, mind blowing. 2 मार्क्स. अगर चेकर ने तुमको 2 मार्क्स नहीं दिया तो तुम मेरे तरफ से 2 मार्क्स ले. स्वयं दिया है. वेरी गुड. ओके. मैंने भी ऐसे ही लिखा बट मेरे को 1.5 दिया. नहीं ऐसे ही लिखा है का मतलब क्या है शुभ? तू बोल ना तेरा आंसर. हाँ मिस, वो मैंने ना नेक्स्ट चेंबर मेंशन नहीं किया, मैंने वो नियर बाय ऑर्गन. भाई हर चीज इंपॉर्टेंट होती है भाई, हम ऐसे ही नहीं देते 2 मार्क्स. ठीक है. चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी एंड स्वयं तू ही आंसर दे दे. स्वयं. Miss, deoxygenated blood is sent and oxygenated blood is received. और systemic circulation में मैंने लिखा है oxygenated blood is sent and deoxygenated blood is received. No, I didn't like this answer. Pertains to lung, pertains to major circulation in the body. Okay, pulmonary circulation, it is it starts from the pulmonary artery arising from the right ventricle and carry deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation. Systemic circulation, it starts from the aorta arising from the left ventricle and carries oxygenated blood to all the body parts. Exactly. Done. सबको समझ में आया? Miss, between heart and lungs लिखा है तो wrong है. नहीं, perfect है. Pulmonary circulation is the circulation between the heart and lungs. Systemic circulation is circulation between the heart and body parts. ये भी right है. आदित्य, ये भी right है. चलो, diastole and systole. मैंने भी एकदम सेम लिखा है, एकदम सेम. Very good, शाहिद. आदित्य, आप ही आंसर दे दो. Diastole and systole का. Contraction phase और relaxation phase. बट बस इतना ही लिखा है आपने, ये 2 ही वर्ड लिखा है. थप्पड़. ना 2 मार्क्स. क्या मजाक है क्या?
Okay, you need to write on a proper difference. How are you going to write down? Diastole mein, it is the relaxation phase of the cardiac cycle wherein the heart chambers are filled up with the blood. And systole, it is a contraction phase of the cardiac cycle where the heart chambers pump the blood. Wow. मिस मैंने ऐसा लिखा कि diastole occurs when heart relaxes after contraction. मिस्टर रॉन्ग कर दूं? रुद्रा is always. हाँ तो रॉन्ग कर. रुद्रा ठीक है, आंसर राइट है, ठीक है डाल दो. हाँ शाहिद तू बोल. शाहिद. हाँ मिस. जब मैं बोलती हूँ तभी बीच में बोलता है और जब मैं पूछती हूँ तभी तो बोलता है. नहीं मिस, मैं पूछ रहा था कि आपने आंसर शीट कहाँ पे भेजा है. मुझे क्या पता. मुझे भी नहीं मिल रही ना. हाँ तो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, तुम देखो ना, चेक कर लो. आर्टरी एंड वेन. हाँ मिस, पर मैंने क्वेश्चन 2 के ए का फर्स्ट सेकंड आंसर मेरे को नहीं आ रहा था, तो वही देखना था. क्वेश्चन 2 का ए का फर्स्ट सेकंड. तो ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो. हाँ लिखा है. हाँ मिस देख लिया, बस डीपली मिस समझ नहीं आ रहा है. डीपली सीटेड. हाँ मिस हो गया. Can someone tell me this guy is going to be with us for the entire year? Yes. I'm going to kill myself. All right, artery and vein. Swayam, answer. They take blood away from the heart and towards the organs. They take blood away from the organs and towards the heart. Superb, superb. Artery, it carries blood away from the heart towards the organ, and vein carry blood towards the heart away from the organ. Very nice. Ma'am, and I also mentioned the point of oxygenated and deoxygenated. Very good, Aryan. बराबर है, perfect है. Rudra. Miss मैंने लिखा carries oxygenated blood to all parts of the. हाँ, it carries oxygenated blood to all parts of the body except pulmonary artery. हाँ. लिखा तूने? हाँ. हाँ, okay. हाँ. One mark. दे. चलो, diagram based question, guys. पहले हम सारे labelings कर लेते हैं. 1 क्या है? सुपीरियर वीना कावा. वेरी गुड. 2 क्या है? मिस मैंने तो वेन लिख दिया. एओर्टा. एओर्टा. ओके. 3 क्या है? मिस एक मिनट, पल्मोनरी आर्टरी. चेक कर लो. पल्मोनरी आर्टरी. 4 क्या है? पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. 5 क्या है? डॉर्सल एओर्टा. नहीं, हेपाटिक आर्टरी. हेपाटिक आर्टरी होगा ना. हाँ सही है. हेपाटिक आर्टरी. 5. एरो देखो लिवर की तरफ जा रहा है. 6 क्या है? हेपाटिक ल्यूनर वेन. हेपाटिक पोर्टल वेन. वेरी गुड. 7 क्या है? हेपाटिक वेन. हेपाटिक वेन. और 8 क्या है? इंफीरियर वीना कावा. हाँ, इंफीरियर वीना कावा. ओके, मैंने सारी लेबलिंग्स कर ली अपन ने, ताकि अपन लोग को like you know it will become easy for us to solve it. Name the blood vessel 1 and 2. तो 1 हमने लेबल कर दिया सुपीरियर वीना कावा and 2 is अगर किसी ने वेन लेबल किया तो वो रॉन्ग है. सर सेकंड वाले का मैंने लिखा आर्टरी. रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग. State the function of blood vessel 5 and 6. बचा लो. 5 का क्या लिखा है? हेपाटिक आर्टरी. It carries oxygenated blood to the liver. 6 का है हेपाटिक पोर्टल वेन. ध्यान से सुनो हेपाटिक पोर्टल वेन का. आई एम श्योर हेपाटिक पोर्टल वेन सबका रॉन्ग होगा. It carries deoxygenated blood with excess amount of glucose and amino acids from small intestine and stomach to the liver to regulate the concentration of blood in the body. यही गलत गया. मालूम है मुझे. आई फुल कॉन्फिडेंस होता है पूजा मैम को यहाँ पे. कौन क्या लिखता है वो. चलो, हेपाटिक पोर्टल वेन का once again. It carries deoxygenated blood. It carries deoxygenated blood with excess amount of sugar and amino acids from small intestine and stomach into the liver to regulate the concentration of the blood in the body. Okay. Next,
What is the importance of blood vessel label 3? 3 pulmonary artery है. क्या है importance? It carries It carries deoxygenated blood to from the the heart to lung for purification. Very for good. purification. It carries deoxygenated blood from the heart to the lungs for purification or for the oxygenation. Okay. Purification मत लिखो, oxygenation लिखो. Okay, Which ma'am. blood vessel contains high amount of glucose and amino acids after the meal? Hepatic. आप ऐसे लिखोगे blood vessel 6 hepatic portal vein. Please write down with reference to diagram. डायग्राम के रेफरेंस के थ्रू लिखना है. आपको नंबरिंग करना पड़ेगा. कौन सा नंबर वाला यहाँ पे वो ब्लड वेसल है जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड हाई अमाउंट में रहता है. दैट इज ब्लड वेसल 6 हेपेटिक पोर्टल वेन. ओके. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द डिफरेंट ब्लड सेल्स सीन इन द स्मीयर ऑफ द ह्यूमन ब्लड. स्मीयर पूछा है तो मतलब माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ड्रॉ करना है. मतलब माइक्रोस्कोप में क्या क्या देखने को मिलता है हमें वो देखना है. तो आपको प्लाज्मा ड्रॉ करना है, आरबीसी ड्रॉ करना है, WBC ड्रॉ करना है एंड प्लेटलेट्स भी ड्रॉ करना है. ओके. सो यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल वेयर यू शो द प्लाज्मा इन अ डॉटेड फॉर्म. ओके. सो दिस इज प्लाज्मा. यू शो डोनट शेप का RBCs. You show lymphocytes or any WBC. You show platelets which are flat and thin. All right. That's it. The चार components आ गए. Enough. You just label it now. Ma'am. बट सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है क्योंकि स्मीयर पूछा है. स्मीयर वी सी अंडर दी माइक्रोस्कोप. ओके. मैम प्लाज्मा को इसमें क्या मार्क करना था? मैंने प्लाज्मा को नहीं मार्क किया इसलिए. ये जो सरफेस आप ड्रॉ करोगे ना डॉटेड, उसको प्लाज्मा मार्क करना है. ओ इसलिए. ओके मैम. हाँ मैंने सेम डायग्राम बनाया पर उसमें खाली वो लेबलिंग कर दिया. क्या कर दिया? सेम डायग्राम बनाया और लेबलिंग कर दिया. लेबलिंग कर दिया. कौन सा डायग्राम बनाया तूने? यही वाला जो बाजू में है वही. ये वाला? हाँ मिस. हाँ हाँ मिस मैंने भी सेम ही किया ऐसे ही. हाँ शाहिद. डन बच्चा लोग? क्लियर विद द पेपर? एनी डाउट? No doubt, ma'am. All right. Let's begin with our topic. What was the last thing that we have studied, Swayam? मिस सेंट्रोमियर वाला किया था हम लोग ने. क्या किया था हम लोगों ने? सेंट्रोमियर. नहीं. ये वाला? स्वयं ये वाला? यस मिस. चलो तो इसके बाद वाला देखते हैं. नहीं मिस ये करना था. मैम जीन्स तो हुआ था. जीन्स हो गया था रुद्रा. जीन्स पढ़ा दिया था. We have to do needs for cell division. Need for the cell division. Yeah. चलो guys, let's start with a new topic. उसी चैप्टर का नया टॉपिक. Why do you think that the cell has to always divide? To replace the old cells with the new cells so that the body. Yes, of course. एक तो replacement के लिए, एक तो growth के लिए, एक तो repair के लिए, right? देखो ऐसा नहीं है कि सेल हमेशा ऐਵੇਂ ही डिवाइड कर लेते हैं. मतलब it's not considered that the cell is dividing just for the time pass or just for the sake of division it is doing it. Division करने का कोई ना कोई major reason होता है. The newly cells are produced for, first of all, for growth. New cells क्यों produce होते हैं? For growth. Every organism का life is starting from the single cell. Do you know that? Plant is also been produced from the single cell. Animals are also produced from the single cell, and humans are also produced from the single cell. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने बड़े हैं, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का हमारा बॉडी बना है, तो हम लोग सिंगल सेल से किधर से आए? हम लोग सिंगल सेल से ही बने हैं. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है. शायद व्हाट इज स्पर्म एंड ओवम? Aditya, what are sperms and ovum? Aditya.
I think he's not there in the meeting. आदित्य श्रीवास्तव है, मैं देख सकती हूँ उसको. Look at him. Everyone just look at him. Aditya Srivastav. Hello. Hello. Am I audible to you? Yes, miss. Aditya Srivastav, am I audible to you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. एक नंबर है, खतरनाक. सही है यार, अवार्ड देना चाहिए. ट्रस्ट मी. मिस वो हेलो हेलो बोल रहा है. लीव कर दिया. लीव नहीं, हमने निकाल दिया है. It's my window, it's my Zoom. I can do anything, baby. All right. जब उसका ध्यान ही नहीं है तो ऐसे नमूने लोग को हमारी जरूरत ही नहीं है. खत्म बात वहीं पे खत्म हो जाती है. Right? Yes, Shahid. So next time you be very. Miss, मैं हूँ active. I'm just telling you. Relax. Take it easy. Okay. Next time you be very careful. All right. चलो. Sperm and ovum. अच्छा शायद तुम्हें पता है sperm और ovum क्या होता है? हाँ मिस. क्या होते हैं? मेल गैमेट्स पढ़ा तो था. मेल गैमेट. हाँ क्या होते हैं? sperm और ovum क्या होते हैं? कभी पढ़ा था ना? ठीक है बताओ क्या होता है? हाँ मिस पढ़ा था. हाँ अच्छी बात है. हाँ मेल गैमेट. क्या सॉरी आई डिडंट हियर यू. मेल गैमेट. मेल गैमेट कौन सा है? स्पर्म या ओवम? स्पर्म. ओके. ओवम क्या है? फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट. ओके. तो ये गैमेट्स क्यों प्रोड्यूस करना रहता है? वही पढ़ने के लिए तो क्लास में बैठा हूँ मैं. वाह शाबाश. यानी कि तू 8वीं पास होके नहीं बैठा था? नहीं मिस पढ़ा पर भूल गया. अच्छा शाहिद इतना तो पता है ना, ये तो जीके है कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? कितने? ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या एसेक्सुअल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो गैमेट्स कौन बनाता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो गैमेट्स बनाता है या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो गैमेट्स बनाते हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो. तो आ गया ना आंसर आ गया ना? हाँ. So sperm and ovum, guys, when the sperm and ovum they fuse together, it produce a single cell which is called zygote. ये देखो, it's a single cell. अब इसको हम fertilized egg भी बोलते हैं, guys. इसको हम fertilized egg भी बोलते हैं. Now this zygote, when it is repeatedly dividing, okay, continuously जब ये divide करता है, it produce mass of cells. These mass of cells develop into tissues. Okay, tissues develop into organs. Many organs they work together to form organ system. मतलब बहुत सारे organs systematically अच्छी तरीके से एक साथ काम करते हैं to form the different organ systems. Organ system then develop a body which is nothing but baby, right? When the baby is given birth, after birth, even the baby still grows and turn into adult. यहाँ तक इनका growth होते रहता है, यहाँ तक division होते रहता है. After the adult division, growth, everything stops. Only the body functions. अब आप ध्यान से देखो, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारी शुरुआत हुई है जाइगोट से, यानी कि हम भी सिंगल सेल से ही बने हैं. From this single cell, when this single cell is repeatedly dividing, it is producing various mass of cells which are then developing into various organs in our body. And these organs are nicely, they are synchronized and they're organized properly in the body to form the organ system. तब जाके एक baby तैयार होता है.
when this baby is given a birth, after the birth also, the process of cell division does not stop. It continues because baby need to grow till the adult. The moment it grows into the adult, यहाँ पे हमारे सेल का नंबर हो जाता है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. हमारा नंबर पहुंच जाता है यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. यानी कि सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऐसे तो नहीं आए ना. It has been produced by the process called cell division. और इसलिए हमारे बॉडी में सेल डिविजन बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है. Remember, we do not carry out reproduction by mitosis. We carry out reproduction by meiosis. Okay? Yes, Aryan. Ma'am, so when in an adult human, the process of cell division completely stopped, or for certain organs like in blood division is necessary, right? Listen to me, everyone. जो overall body का growth के लिए जो cell division होता है, वो stop हो जाता है. Very good question he has asked. जो overall body के growth के लिए cell division चाहिए, वो stop हो जाता है. But after that, only for certain organs या मतलब कुछ organs and कुछ जो cells होते हैं special cells, वो division continue करते हैं क्योंकि उनको replacement का काम होता है. So I'm coming to the second point. अगर ये लिख के हो गया तो मैं second point पे आऊँ, which is related to the question that has been asked by Aryan. Is it done? Yes, ma'am. Okay, please check this. The second point is about replacement. जो आर्यन ने कहा, मतलब कुछ हमारे बॉडी के सेल्स एडल्ट होने के बाद भी कुछ हमारे बॉडी के सेल्स कंटिन्यू करते हैं डिवीजन करना. लाइक फॉर एग्जांपल बोन मैरो, जिसको एवरी 120 डेज में आरबीसीज को रिप्लेस करना होता है. करेक्ट. 2 million RBCs are replaced in every second by the bone marrow. मतलब इमेजिन करो bone marrow कितना फास्ट डिवाइड करते होंगे जिससे कि वो 2 million RBCs पर सेकेंड में रिप्लेस करते जाते हैं. और इस तरह से पूरा 120 डेज में हमारे सारे RBCs रिप्लेस हो जाते हैं. So yes, Aryan, some special cells, they do have property of division even after we have become adult. All right? Yes, ma'am. Thank you. Third point is replacement. कभी हमारे बॉडी में कुछ इंजरीज आ जाती है, एक्सीडेंटल इंजरीज और कट इन द स्किन और फ्रैक्चर टू द बोन्स. ऑल ड्यूरिंग ऑल दीज सिचुएशन आवर सेल्स आर डैमेज वेरी बैडली. इन डैमेज सेल्स को रिपेयर करना बहुत जरूरी है. एंड दीज आर रिपेयर्ड बाय द स्टेम सेल्स व्हिच अंडरगो सेल डिविजन. यानी कि स्टेम सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड वो नए सेल्स डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं. तो यानी कि देयर इज अ रिप्लेसमेंट प्रोसेस इन रिपेयर, but there is no repair process in replacement. Did you understand this sentence? There is a replacement process in repair, but there is no repair in the replacement process. यानी कि रिपेयर करते वक्त रिप्लेसमेंट होता है किसका? डैमेज सेल्स का नए सेल्स के साथ. डैमेज टिश्यूज का नए सेल्स के साथ रिप्लेसमेंट होता है. बट रिप्लेसमेंट में कोई रिपेयर का काम नहीं होता है. रिप्लेसमेंट में ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So I can use the word replacement in both the cases. For old cells to replace with a new one and for the damaged cells to replace with a new one. दोनों के लिए word replace आ सकता है, but repair old cells के लिए नहीं आएगा. Are you getting it? Ma'am. हाँ. Ma'am, I have a doubt. Can I ask about when we get a burn and our skin cells are burnt, right? So at that time, the damaged cells are being healed by the ointment that we are applying. No, not at all. It's not only about the burn case. अगर आपको कोई wound आता है या कहीं पे injuries आती है, डॉक्टर आपको antibiotics भी देते हैं. It is not the medicine which is actually repairing our body. It is our own stem cells, our own stem tissues जो हमारे body का repair करते हैं. मतलब वो basically नया cells produce करते हैं, नए tissues produce करते हैं. See, medicines are only meant for protecting our damaged tissues from the bacteria. ताकि बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करके उसको और डैमेज ना करे. यू नो दैट. इसीलिए हम मेडिसिन लेते हैं, समझ रहे हो, ताकि वो और ज्यादा खराब ना हो. बट डोंट बी अंडर द अजम्पशन कि मेडिसिन हमारे नए सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? मेडिसिन आर जस्ट केमिकल कंपाउंड्स. वो नए सेल्स कैसे बनाएंगे? वो नए टिश्यूज कैसे बनाएंगे? या ओके. द फोर्थ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. व्हेन यू टेक अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा जब डिवाइड करते हैं तो वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट? मतलब whenever the amoeba is dividing, it produces the progeny cells which are exactly same like the parental cell. That means these cells undergo mitosis. But in humans, there are special type of cells which are produced. In humans,
there are special type of cells which are produced called as gametes, and these gametes are produced by meiosis. यानी कि humans क्या करते हैं? They carry out the process of meiosis, and amoeba they carry out the process of mitosis. So when the humans carry out meiosis, they produce gametes in our reproductive organs. That is testes in male and ovaries in female. यानी कि testes में meiosis होता है sperm formation के लिए, and ovaries में meiosis होता है for the egg या ovum formation के लिए. And then these kind of gametes, when they fertilize with each other, they produce the progeny. Remember, gametes, that is sperms, and now I'm coming to a very important point. Sperms and eggs, they receive half the number of chromosomes. मतलब जब भी meiosis होता है, sperm and eggs, they have half the number of chromosomes. Okay, यानी कि one chromosome of each pair, guys, one chromosome from each pair. बताती हूँ. Everyone see this schematic. बॉडी सेल्स, ह्यूमन के जो बॉडी सेल्स है, दीज आर डिप्लॉयड. डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. आर यू लिसनिंग टू मी? डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. दैट मींस इन आवर ईच एंड एवरी सेल हमारे पास 2 सेट है. 1 set from the father and 1 set from the mother that we have received. 23 chromosomes from the father and 23 chromosomes from the mother that we have received. So now we are diploid. यानी कि हमारे हर एक बॉडी सेल्स में 46 number of chromosomes are present, which I can say 23 pairs. Can I say that? 46 chromosomes को मैं 23 pairs भी बुला सकती हूँ. And diploid is indicated by 2n. Male diploid, female diploid. When they produce gametes, which are called sex cells, that is sperms in the male and ovum in the female, they are haploid. You can see it is single set of chromosomes that are present in the gametes. यानी कि gametes में sperm में जाता है 23, सिर्फ एक ही सेट जाता है, और egg में भी एक ही सेट जाता है. When these two undergo fusion, जब sperm और egg fuse होते हैं, they produce zygote, which is a fertilized egg. And zygote में ध्यान से देखो 46 नंबर फिर से restore हो रहा है. Are you able to see this? 46 number is restored, and because of this restoration, new baby is being produced. यानी कि human chromosome का number कितना है? What is a human का chromosomal number? Human का chromosomal number is 2n is equal to 46. What it is? 2n is equal to 46. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग क्रोमोसोमल नंबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्स आर 46 बिकॉज वी हैव इवॉल्व फ्रॉम द एप्स. तो हमारे और उनमें नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है. monkeys they have 48, gorilla they have 48, okay, dogs they have 78, okay, elephants have 84. So chromosomal number हर एक animals का अलग अलग होता है, but remember they are always diploid, यानी कि दो सेट्स में होते हैं. हमारा 46 है, so we are having 2 sets of chromosome, इसलिए मैंने वहां पे 2n लिखा हुआ है. all right, because 23 we receive from father and 23 we receive from mother. सेम वे यहाँ पे मैंने दिखाया कि जब मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स में हाफ नंबर जा रहा है. अब हाफ नंबर का गैमेट अगर दूसरे हाफ नंबर के गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो 46 नंबर दोबारा से रीस्टोर होता है. अब अगर 46 नंबर रीस्टोर नहीं होगा तो ह्यूमंस के फीचर्स डेवलप नहीं होंगे. डू यू थिंक दैट कि ह्यूमन स्पीशीज डेवलप होगा? नहीं होगा. अगर ह्यूमन स्पीशीज डेवलप करना है तो 46 नंबर होना चाहिए क्रोमोसोम्स का. एंड that is why sperm and eggs are produced by meiosis, जहां पे गैमेट हाफ में रिड्यूस हो जाता है, गैमेट में क्रोमोसोमल नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है, so that we can receive chromosomes from both the parents. रीजन आइडिया ये है कि हमें अपने फादर से भी रिसीव हो और हमें अपने मदर से भी रिसीव हो. दैट इज व्हाई वी आर सिमिलर विथ आवर मदर एंड फादर, बट वी आर स्टिल डिफरेंट फ्रॉम आवर मदर एंड फादर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस डिफरेंस. इज दैट क्लियर? मैम, बट व्हाट इज meiosis? That is a division जिससे gametes produce होते हैं, which we are going to learn after mitosis. तो ये schematic आपको लिख के रखना बहुत जरूरी है meiosis समझने के लिए. Then only you will be able to understand. Miss रुद्रा, diploid का मतलब होता है 2 sets of chromosomes. Double 23 pairs है ना बच्चा. Pair मतलब 2 सेट में 23. आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 23 plus 23. आपको पता चल जाएगा 2 सेट्स है, 2 सेट्स है. हाँ मिस, हाँ स्वयं.
मिस जब स्पर्म सेल्स बनते हैं तो उसमें से 23 कोई भी रैंडम आते हैं 46 में से या फिक्स्ड होता प्रॉपर है? 23 पेयर्स में से 23 आता है. जो प्रॉपर 23 पेयर्स बनते हैं ना उसमें से एक एक आता है. ओके, फ्रॉम ईच पेयर 1 क्रोमोसोम. तो फ्रॉम 23 पेयर्स 23 क्रोमोसोम. ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रोमोसोम रिपीट हो रहा है. ओके गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जो स्वयं ने पूछा. एवरीवन डन विद दिस? ये क्रोमोसोम्स वापस बिल्ड हो जाते हैं. क्या ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? वापस आ जाते हैं. मतलब वापस मतलब किधर गए? वापस बिल्ड होती है सब. मैं नहीं समझी आपका क्वेश्चन. मिस मतलब अगर खत्म होता है तो ये वापस बिल्ड हो जाता है. खत्म अपने होता आप को बनाता है वापस. खत्म कहाँ पे हो रहा है अमन? खत्म तो हो ही नहीं रहा है. तो ट्रांसफर होते जा रहा है एक जनरेशन. मिस जैसे सेल खत्म हो रहा है तो बन रहा है, तो ये अगर खत्म हो रहा है तो ये बन रहा है. सेल कहाँ खत्म हो रहा है अमन? सेल खत्म मिस नहीं हो मतलब डिवाइड हो रहा है. नहीं, लेकिन है ना, सेल्स तो प्रेजेंट है ना. हाँ. ओनली फ्यू सेल्स आर तो डिवाइडिंग. यस मिस, तो फिर इसमें ही डिवाइड नहीं हो रहा है. अमान, मैं आपका पॉइंट समझ गई. अमान ये कहना चाहता है कि जब सेल डिवाइड हो जाता है तो वो सेल तो डिवाइड हो गया और उसे डॉटर सेल बना दिया, राइट? तो फिर वो डॉटर सेल में क्रोमोसोम फिर से बनते, तुम ये बोल रहे हो? हाँ मिस, मतलब वापस बन रहे कि नहीं? वापस क्यों बनेंगे अमान? जो सेल डिवाइड हो रहा है उसी में से तो क्रोमोसोम पास हो रहा है ना बेटा. यस मिस. जो सेल डिवाइड हो रहा है उसी में से क्रोमोसोम पास हो रहा है. अमान रुक जा, तू मुझे ना आगे के प्रोसेस के बारे में अभी से पूछ रहा है. मैं अभी बस उसी पे आ रही हूँ. जरा थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले, सबको कॉपी कर लेने दे. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके मिस. यस, एवरीवन फिनिश विद दिस? ऑलराइट, लेट्स सी सेल साइकिल. अमान तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अपना क्वेश्चन याद रखना. सेल साइकिल गाइस, सेल साइकिल. किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए it has to complete certain task. यानी कि अगर सपोज सेल ने डिसीजन लिया कि उसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन करने से पहले उसको कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसको कुछ प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, द सेल मस्ट ग्रो कंप्लीटली, फुल्ली ग्रो होना चाहिए सेल. ओके, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनको डिवाइड करके कोई मतलब नहीं है. मैच्योर सेल्स को डिवाइड करना है, मतलब द सेल्स हैव टू बी mature enough to divide. Okay, so they have to grow completely. Second, they have to synthesize certain materials like proteins, RNA, ATP molecules, etc., which will make them healthy and which will make them fully nourished ताकि वो division कर सके. They have to duplicate their DNA. ये तो बहुत ही important है. They have to duplicate their DNA ताकि वो DNA को individually दोनों daughter cells में पास ऑन कर सके. ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके. अमान, अब तुम्हें पता चला सेल्स नए डीएनए बना नहीं रहे, वो मदर सेल में से ही रिसीव कर रहे डीएनए, बिकॉज द मदर सेल हैज टू डुप्लीकेट इट्स डीएनए. ऑलराइट, ना आगे सुनो, आगे सुनो, क्लियर होगा. तो गाइस, जब ये सारी टास्क, जब ये सारे इवेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है ना, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल. व्हेन ऑल दीज टास्क takes place in a proper sequence, it is called a cell cycle. What is cell cycle? It is a series of events that takes place in a cell where the cell is duplicating its DNA and dividing into 2 daughter cells. All right, मतलब कुछ events होते हैं जो proper series में होता है, like growth, RNA and protein synthesis, DNA duplication, division. जब ये सारे process एक sequence में होता है, it is called as cell cycle. Is that clear? राइट, अब मैं आपको वो सीक्वेंस बताती हूँ. पहले सेल क्या करेगा? पहले सेल करेगा ग्रोथ. ओके, बिना ग्रोथ के तो वो डिवीजन नहीं करेगा. आफ्टर द ग्रोथ इट विल डबल इट्स डीएनए. DNA duplication. Okay, after DNA duplication it will synthesize certain proteins and RNA. ठीक है, एंड इसके बाद वो इमीडिएटली डिवाइड करेगा. ओके, तो ये हो जाता है प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द इवेंट. तो पहले क्या कर रहा है? ग्रोथ. ऑलराइट, सो ऑल दीज सीक्वेंस और सॉरी ऑल दीज इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन अ 4 phases. और देखो मैंने 4 स्टेप्स ही लिखे हुए हैं यहाँ पे: ग्रोथ,
DNA duplication, synthesis of proteins and RNA, and then division. तो growth हो जाता है G1, DNA duplication हो जाता है S phase, RNA and protein synthesis हो जाता है G2 phase, and division हो जाता है M phase. So by the way, cell cycle के 4 phases हैं, G1, S, G2 and M. All right, wherein G1, S, G2, all 3 comes under interphase. All 3 they come under interphase. तो आइडियली हम सेल साइकिल को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इनटू इंटरफेस एंड एम फेस. इंटरफेस इज G1S एंड G2, जहां पे सेल पहले ग्रोथ कर रहा है, फिर डीएनए को डुप्लीकेट कर रहा है, और फिर वो आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करके इमीडिएटली डिवाइड कर रहा है. देखा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल साइकिल. मैम ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रही है डीएनए को कंडेंस करने वाले प्रोटीन से, जो डीएनए को कंडेंस करने वाले भी प्रोटीन्स हैं, एंड थोड़े बहुत प्रोटीन्स जो डिवीजन के वक्त चाहिए वो भी हैं. दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. मैम सॉरी, मतलब फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस कब होगा? वो डिवीजन के वक्त होगा. डिवीजन के बाद जब क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे. He is asking a very right question. Please listen to his question. He is asking me कि ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, ये डीएनए कंडेंसेशन के लिए प्रोटीन्स है क्या? Yes, it is the protein. These are the proteins which are required for the DNA condensation. क्योंकि जैसे ही सेल डिवीजन के अंदर एंटर करेगा ना, वो सबसे पहले डीएनए को कंडेंस करेगा क्रोमोसोम्स में. So condensation of DNA and chromatin will take place during the M phase, start of the M phase. All right, तो याद रखना ये point. Everyone. Yes, ma'am. Okay. So shall we see the cell cycle now? मैंने एटलीस्ट आपको बता तो दिया कि कितने फेजेस है उसमें. ओके. सेल साइकिल को हम 2 फेज में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच इजी वे, वी डिवाइड इनटू 2 मेजर फेज, दैट इज नॉन डिवाइडिंग फेज which is called interphase, and dividing phase which is called M phase, which is also called as simply mitosis. आप इसको माइटोसिस भी बोल सकते हो, हाँ, एम को माइटोसिस भी बुला सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो इंटरफेज वो फेज है जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है. हेलो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग. सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन सेल डिवीजन करने की तैयारी कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सेल बाकी सारी एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है. सो ऑल अदर एक्टिविटीज आर प्रॉपर्ली डन बाय द सेल, बट एक्सेप्ट द डिवीजन. क्योंकि डिवीजन वो कब करेगा? डिवाइडिंग फेज में. एंड व्हाट इज द डिवाइडिंग फेज कॉल्ड? एम फेज. क्लियर? यस मैम. ओके, चलो. So shall we see the you can see the diagram, guys. You can see the diagram. You can see G1. Can you see the G1? Yes, miss. S, G2 and M. M वो फेज है जहां पे सेल डिवाइड होके नए सेल्स बनाता है. ओके, 2 न्यू सेल्स. कंपल्सरी 2 ही डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 या 6 या 8 नहीं बनेंगे. 1 cell divide to produce always 2 daughter cells. Remember that. 1 cell divide to produce only 2 daughter cell. 2 जब वो 2 सेल साइकिल में आते हैं, मतलब जब वो 2 सेल डिवाइड करते हैं तो 2 4 बनाएंगे. 4 will produce 8, 8 will produce 16, 16 will produce 32. ऐसे होता है. Understood? Every time when the cell is entering into division, वो 2 ही डॉटर सेल्स बनाएगा. ये याद रखना. चलो, let us see the interphase now. जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, ओके, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, these cells are very small. They cannot carry out division. So first they have to grow in a complete size to become a mother. So basically these cells are now said to be in a interphase. मतलब जो newly formed daughter cells है, अब वो interphase में enter करेंगे. ओके, तो let us assume कि वो interphase में enter कर रहे हैं. ओके, मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ.
S and G2. Everyone please pay attention. M क्या है? डिविजन फेज, राइट? इमेजिन करते हैं यहां पे सेल प्रेजेंट है, यहां पे एक सेल प्रेजेंट है, मदर सेल. ओके, mother cell which is having 46 chromosomes. It is dividing and producing 2 daughter cells. बराबर है? It is dividing and producing 2 daughter cells. चलो, तो मतलब ये दोनों daughter cells क्या है? वो 23 होना चाहिए ना? नहीं, ये मियोसिस नहीं है, ये माइटोसिस है. ये मियोसिस नहीं है, मियोसिस कभी सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता. अरे वो तो सेक्सुअल मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो रहा है आर्यन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, तो जहां पे क्रोमोसोम हाफ होगा वो सेल साइकिल कैसे करेगा कंटिन्यूसली? इसमें डुप्लीकेट कर रहे हैं. प्लीज डू नॉट ब्रिंग द मियोसिस राइट नाउ ओवर हियर, अननेसेसरी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आर्यन. फर्स्ट यू पे अटेंशन ऑन दिस. यस मैम. ओके, mother cell, please listen to me. Mother cell which is having 46 chromosome, यहाँ पे उसे डिवाइड किया एंड नए सेल्स बनाए. Each daughter cell is having 46. Let us start our cell cycle with this new cells. Let us start our cell cycle with these new cells. So पहले ये दोनों नए सेल्स G1 के अंदर एंटर करेंगे, बराबर है? यहाँ पे सेल ग्रो होगा, अच्छा खासा ग्रो होगा, मैक्सिमम साइज में पहुंचेगा. आर यू लिसनिंग? आरएनए प्रोटीन्स जो ऑर्गेनल डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो प्रोड्यूस होगा. क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया विल डेवलप वेरी नाइसली. तो मतलब सेल काफी अच्छा ग्रो होके मैच्योर हो जाता है, बराबर है ना? आफ्टर मैच्योरिटी सेल के पास 2 ऑप्शन है. आप सुन रहे हो? आफ्टर मैच्योरिटी सेल के पास 2 ऑप्शन है. Option number 1, cell will come out of the G1, मतलब cell will come out of the cell cycle and will go into G0. G0 में cell cycle stop हो जाता है and the cell becomes permanent cell. Okay, permanent cell wherein it loss ability of division. मतलब ये सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, ये सेल कभी भी आगे डिवाइड नहीं करेगा, कंप्लीटली परमानेंट हो चुका है. ये पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन, ये दोनों नए सेल्स को जिन्होंने ग्रो किया है उनको करना है डिविजन, सो देन दे विल एंटर इनटू एस फेज. ये हो गया दूसरा ऑप्शन. समझ में आया? ये 2 ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन, सेल ने ग्रो कर लिया, अब ग्रो करने के बाद सेल डजंट वांट टू डिवाइड, ये दोनों सेल्स को डिवाइड नहीं करना है, सो ये दोनों सेल्स G1 में से बाहर निकल जाएंगे एंड G0 में परमानेंट हो जाएंगे. दे विल स्टॉप द डिवीजन, दे विल स्टॉप ग्रोइंग एंड नाउ दे विल कैरी आउट ओनली फंक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे परमानेंट सेल्स, एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट सेल्स, ब्रेन सेल्स, nerve cells, etc. All these are permanent cells. They have lost the ability of division and now they will carry out only function. ये एक पॉइंट क्लियर हुआ. अब दूसरा ऑप्शन ये है, अब दूसरा मैम तो परमानेंट सेल डिवाइड क्यों? हेलो यस मिस. हाँ प्रथम बोलो. मैम वो परमानेंट सेल्स फिर डिवाइड क्यों नहीं होते, वो अलग कैसे हो जाते प्रोसेस? परमानेंट हो गए, they have lost the ability, so now they will not divide, they will only carry out function. They have become mature, so they will carry out only function. Mature हो गए, mature. Maturity के बाद का दिखा रही हूँ. तो मैम वो डिवाइडेड सेल्स ही मैच्योर होते हैं ना? हाँ,
कौन से डिवाइडेड सेल्स? प्रथम ये जो न्यूली फॉर्म सेल्स है वो ग्रो होने के बाद मैच्योर होके फिर बाहर निकलते हैं। हाँ 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 ओके। तो दो ऑप्शन दिखा दिया मैंने, सेल्स मैच्योर होने जाने के बाद दो ऑप्शन, या तो G0 या तो S में। लेट अस टेक सेकंड ऑप्शन। अपने को पहले ऑप्शन में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये कि सेल ने डिवाइड करना है। तो अब सेल, ये दोनों सेल्स यहां पर पहुंच गए। अब दोनों सेल्स में डीएनए डुप्लीकेट होगा। हेलो, डीएनए डुप्लीकेट होगा, यानी कि डीएनए डबल हो जाएगा। जब डीएनए डबल होगा, दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम्स 46 है, लेकिन क्रोमैटिड 92 हो जाएगा। Chromatid 92, because each chromosome will have 2 chromatids now. Are you understanding? Each chromosome will have two chromatids, यानी कि sister chromatids. Duplicate हो गया, DNA duplicate, यानी कि chromatid का भी duplicate हो गया. Are you getting it? Okay, सबको ये वाला structure याद आ रहा है? ये जब मैंने पढ़ाया था, ये याद है सबको? Yes ma'am, हाँ. सेंट्रोमियर पे दो क्रोमैटिड्स अटैच्ड है, एंड बोथ दीज क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड, यानी कि वन क्रोमैटिड इज फॉर्म्ड ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल एंड अनदर क्रोमैटिड इज फॉर्म्ड ऑफ अनदर डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि जब डीएनए डुप्लीकेट होता है तो क्रोमैटिड्स का भी डुप्लीकेट होता है। सो बोथ द क्रोमैटिड्स आर सेम, इसीलिए वो सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है। मैं ये पॉइंट बता रही थी। आर यू गेटिंग इट? सो क्रोमैटिड्स कितना हो जाएगा? 92। यहां पे क्रोमैटिड कितना था? 46। जब सेल G1 में था क्रोमैटिड कितना था? 46। अब जब सेल S फेज में आया क्रोमैटिड डबल हो गया। ऑलराइट, अब सेल जा रहे हैं G2 में। अब G2 में भी सेल के पास कितना है? क्या? 92 क्रोमैटिड। वेरी गुड। 46, that is 92 chromatids. Very good, correct. अब ये दोनों सेल G2 में आके आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, और ज्यादा आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे जो उनको चाहिए डिवीजन के लिए। एंड नाउ these two cells will enter into M phase. जब ये M phase करते हैं, आई एम शोइंग इट विद द रेड एरो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जब ये दोनों डॉटर सेल्स M phase में एंटर करते हैं, कैसे दिखाऊं? अच्छा, ऊपर दिखा दी। ओके, M phase के बाद each cell will divide and will produce two daughter cells, each with 46, और सबके पास 46 क्रोमैटिड्स होंगे। मतलब 92 क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हुआ। हाँ मैम, समझा। How many of you have understood this? मैम, I got it. हाँ मैम, समझ गया। जो आपने लास्ट दिखाया वो M फेज है ना? हाँ, मैं वहां पे ड्रॉ नहीं कर पाई, सॉरी। मैं उस तरफ ड्रॉ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ। दिस इज M phase. यस मैम, गॉट ये इट। लो M phase। मैम, तो जब वो मैच्योर होते हैं तब वो डुप्लीकेट क्रोमैटिड्स बना देते हैं ना? मैच्योर नहीं, मैच्योर के बाद S phase में डुप्लीकेट होता है बच्चा। हाँ, मतलब मैच्योर के बाद, देखना, मैच्योर के बाद वो डुप्लीकेट बनाते हैं। हाँ, बिफोर S phase इट इज सिंगल क्रोमैटिड। हेलो गाइस, बिफोर S phase क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमैटिड है, एंड आफ्टर S phase ईच क्रोमोसोम इज हैविंग टू क्रोमैटिड्स नाउ, क्योंकि डुप्लीकेट हो गया ना। राइट? अभी आर्यन देखो, डुप्लीकेट हो जाने के बाद क्रोमैटिड्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। आर्यन, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। स्वयं, रुद्रा, अद्वैत, प्रियम, प्रथम, सुन रहे हो? अमान, क्रोमैटिड्स का नंबर डुप्लीकेट हो रहा है, क्रोमोसोम्स का नंबर वैसे का वैसे ही है। अब क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, मतलब सपोज अगर मैं ये एक बड़ा सा क्रोमोसोम ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो सेपरेशन कैसे होगा पता है? सेपरेशन ऐसे होगा, ये देखो ऐसे। इसको हम हाफ नहीं बोलते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लिट अप। वी कॉल दिस एज स्प्लिट अप। दो क्रोमैटिड्स स्प्लिट हो रहे हैं, दो क्रोमैटिड्स आपस में स्प्लिट अप हो रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स, राइट? तो 46 क्रोमोसोम्स का अगर स्प्लिट अप होगा तो 46 क्रोमैटिड एक में जाएगा
एंड 46 क्रोमैटिड दूसरे में जाएगा ना। तो अगर आप देखो तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है थ्रू आउट द डिविजन। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है, देखा आपने? Yes, ma'am. I don't know how many of you are paying attention to this one. Tanish? Miss. Clear? Yes, miss. Harsh, Rohan, Soumya? Yes, miss. मिस तो शुभ? 92 क्रोमैटिड्स उन लोग के 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे। Exactly. 92 क्रोमैटिड्स का स्पिट अप होगा स्वयं। 92 को स्पिट अप करो तो 46 होगा, वो उनका क्रोमोसोम बनेगा। एग्जैक्टली ओके मिस, समझ। हमने स्टार्ट किया 2 सेल से और 2 सेल ने 4 बनाए। अब ये 4 सेल्स वापस जब जीवन में आएंगे एंड एस में आएंगे तो हर एक सेल के अंदर 92 हो जाएगा क्रोमैटिड। फिर वो भी डिवाइड करके 8 सेल बनाएंगे, तो वो 8 सेल्स में भी 46 रहेगा। अंडरस्टूड? मतलब ऐसा फैलता जाएगा, मतलब ऐसा बनता जाएगा ना मिस। हाँ, ज्योमेट्रिकल तनिष, इसको हम ज्योमेट्रिकल डिवीजन कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट एक पॉइंट आपको याद रखना है तनिष, जितनी बार डिवीजन हो रहा है ध्यान से तू ऑब्जर्व कर, क्रोमोसोम नंबर सेम ही है सबके अंदर। सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है डिवीजन के बाद। तो मैम नॉर्मली एक सेल में 46 क्रोमैटिड्स ही होते हैं ना? हाँ, 46 क्रोमैटिड इज कंसिडर्ड टू बी आवर डीएनए ना। सिर्फ वो डीएनए का डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन क्यों हो रहा है अमान, मैंने तेरा आंसर यहाँ पे बता दिया है। तेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। डुप्लीकेशन इसलिए हो रहा है ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके दोनों डॉटर सेल्स में। ऑलराइट, आई होप एवरीवन हैज टेकन डाउन दिस डायग्राम। यस मैम, हो गया मैम। तो अभी जो सेल्स बने हैं वो भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे ना? हाँ बेटा, सेम G1 S G2 और फिर M फेज, फिर वापस G1 S G2 और फिर M फेज। तो ये सिंस साइक्लिक प्रोसेस है ना, इसलिए हम इसको सेल साइकिल कहते हैं। साइक्लिक है ना प्रियम। अब मेरा यहाँ पे देखो साइक्लिक दिख नहीं रहा होगा, आई कांट ड्रॉ इट, बट एवरी टाइम द सेल हैज टू एंटर G1 S G2, और S तो करना ही पड़ेगा प्रियम, बिना S के तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा ही नहीं ना। S फेज तो सभी सेल को करना पड़ेगा। जो सेल्स को डिवीजन करना है ना बच्चा लोग, जो सेल्स को डिवीजन करना है ना, उनको कंपलसरी S फेज करना पड़ेगा, क्योंकि S में डीएनए डबल होता है। बरोबर? मैम एक बार प्रॉपर रीजन दो ना कि मतलब डीएनए डुप्लीकेट क्यों बनता है? डीएनए डुप्लीकेट इसलिए बनता है, डीएनए डुप्लीकेशन इसलिए होता है ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर आफ्टर द डिवीजन। ओके मैम, इधर G2 में वो हो रहा है ना, वो क्या कहते हैं, आरएनए सिंथेसाइज। certain RNA and the other proteins which are required for the cell during the division वो प्रोड्यूस हो रहा है। I hope everyone is clear with this. I want to rub this and I want to show my slide. Yes, perfectly. Done, everyone? Yes. Okay, I'm rubbing it. Okay, let us see the interface. अब अगर आपने वो डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो अपने सामने प्लीज रखो, ताकि मैं जो जो फेस पढ़ाऊं आपको याद रहे, मतलब आपको समझ में आए उसमें से। ओके, सो मैंने ये कहा था कि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है वो बहुत छोटे होते हैं, तो दीज सेल्स आर नाउ एंटरिंग इनटू इंटरफेस। आप देख सकते हो दोनों सेल्स इंटरफेस में एंटर कर रहे हैं, करेक्ट? इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू G1 S एंड G2। अब इंटरफेस के वक्त सेल प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। Okay, cell is preparing itself for the next division, so it is also called as preparatory phase. What it is called? Preparatory phase. Yes, there is no change in the chromosome during interphase. Interphase के बाद chromosomes पे कोई changes नहीं आ रहे. Interphase is also called as resting phase because the cell is resting from the division, but it is active in synthesizing more DNA. कहने के लिए resting बोलते हैं, but cell is active in synthesizing more DNA. Okay. We have divided into 3 phases, G1, S and G2 phase, and then you have M phase. So let us see the first one, G1 phase. G1 phase में cell RNA and protein synthesize कर रहा है,
सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डिवाइडेड बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। अब सेल के पास दो ऑप्शन है, या तो सेल G0 में जाएगा एंड परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो S फेज में जाएगा फॉर द नेक्स्ट डिविजन। सो द नेक्स्ट डिविजन, नेक्स्ट फेज इज S फेज। सेल वांट्स टू डिवाइड, इसलिए वो S फेज में जा रहा है एंड S फेज में मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, मोर डीएनए सिंथेसाइज्ड, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। एंड G2 फेज में RNA and proteins are synthesized which are necessary for the division. याद रखना G2 phase is the shortest growth phase, क्योंकि सेल ने ऑलरेडी डीएनए डबल कर लिया है, तो अब सेल G2 में आके ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा, वो सीधा डिविजन कर लेगा। Got it? रुद्रा, नेक्स्ट टाइम अगर तू मेरे लेक्चर में स्टडी नहीं बैठा ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं तुझे निकाल दूंगी, मैं तुझे वापस एडमिट नहीं करूंगी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? G1S एंड G2 मेरे आउटलाइन के साथ कंपेयर किया तुम लोगों ने, क्लियर हो गया वहां पे कॉन्सेप्ट? ऑल राइट, सो नाउ आफ्टर द G2 phase cell is ready to undergo cell division which is called as M phase. सेल वहां पे डिवाइड करेगा, न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स बनेंगे, वापस से वो सेल्स G1S और G2 में जाएंगे, वापस डिवाइड करेंगे, वापस न्यूली फॉर्म सेल्स G1S और G2 करेंगे, वापस से डिवाइड करेंगे। सो एवरी टाइम दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन अ साइक्लिक मैनर, सो इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए ड्यूरिंग S phase, डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट्स। ये देखो डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे होता है वो बताया मैंने। पैरेंटल डीएनए, जो दो ब्लू रिबन्स मैंने दिखाए, दो ब्लू रिबन, पैरेंटल डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए दोनों डॉटर सेल्स में ड्यूरिंग माइटोसिस, एंड उसी के लिए पैरेंटल डीएनए ओपन होता है, पैरेंटल डीएनए के दोनों रिबन्स ओपन होते हैं एंड दोनों जो रिबन है, दोनों जो स्ट्रैंड्स है, वो इंडिविजुअली अपना नया डीएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूस करते हैं। So each old strand is producing new strand. Can you see that? And इस तरह से दो डीएनए कॉपीज बने। So before S phase क्रोमोसोम के पास सिंगल क्रोमैटिड है, राइट? आफ्टर S phase क्रोमोसोम्स के पास दो क्रोमैटिड आ जाएगा, यानी कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्स ईच क्रोमैटिड। गेटिंग इट? समझा? यस मैम, अच्छे से। मैं वापस से ये प्रॉपर लिख के देती हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। बिफोर S phase each chromosome is having one chromatid, so I will write down one chromatid, correct? Yes. अब after S phase each chromosome is having two chromatids. Each chromosome is having two chromatids, and both these chromatids are called as what? Both these chromatids are called as what? Sister chromatids. Correct? Sister chromatids. So each DNA molecule, ये जो नया यहाँ पे जो दो DNA molecule बना है 1 and 2, ये जो दो DNA molecule बने, each will form one chromatid. Getting it? Each will form one chromatid. तो basically यहाँ पे दो chromatids हो गए ना, तो duplication हो गया ना chromosomes का भी। Every single person, tell me, did you understand? Yes, ma'am. ma'am. ये close strand cell division है। S phase है।
ये सेल डिवीजन कैसे हो सकता है? एस फेज है, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है बच्चा। प्रथम ये डिवीजन कैसे हो सकता है? ये एस फेज है, डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो बता रही हूं मैं, नया डीएनए कैसे बन रहा है वो बता रही हूं मैं। एंड जैसे ही 2 डीएनए कॉपीज बन जाते हैं, वो दोनों डीएनए, मतलब जब 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो दोनों डीएनए ऐसे क्रोमैटिड्स बनाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो 46 क्रोमोसोम्स का 92 क्रोमैटिड्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? यानी कि ईच क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स। ये देखो, प्रथम 1 chromosome with 2 chromatids, that is after S phase। तो 46 chromosomes के पास कितने chromatids होंगे? 92 chromatids। This is after S phase, हाँ, प्रथम after S phase, मतलब DNA duplication करने के बाद। Got it? Okay. Everyone clear? Yes, ma'am. Yes, miss. पक्का? Yes, ma'am. Can the cell cycle go on endlessly? नहीं, सेल साइकिल कंटिन्यूस नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कभी ना कभी तो सेल साइकिल बंद होता है, बिकॉज वी डू हैव परमानेंट सेल्स लाइक लिवर एंड ब्रेन सेल्स, दे कैन नॉट डिवाइड, वंस दे हैव बीन फॉर्म्ड दे कैन नॉट डिवाइड एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। कभी कभी लिवर सेल्स अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं, एवरी वन मतलब डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 or 2 years, बट ये भी बहुत लिमिटेड होता है। बट अदरवाइज ब्रेन, नर्व सेल्स, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, हार्ट सेल्स, ये टोटली परमानेंट सेल्स है, ये कभी डिवाइड नहीं करते। हमारे सरफेस स्किन सेल्स डिवाइड करते बिकॉज एवरी डे उसको रिप्लेस करना रहता है। प्लांट्स में मेरिस्टेम्स, प्लांट्स में जो टिप में मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेम सेल्स, दे आल्सो डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बड्स एंड फ्लावर्स। In our body, there are special cells called germinal cells in testes and ovaries, जो gametes बनाते हैं। In humans, it is testes and ovaries. In humans, it is testes and ovaries, and in plants, it is ovary and anther, जहाँ पर germinal cells होते हैं, and they undergo a special type of division called meiosis to produce gametes. To produce gametes. Is that clear? तो gametes बनाने के लिए meiosis होते हैं, बट अदरवाइज बॉडी सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस ही होता है, याद रखना। कभी कभी सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाता है, सेल साइकिल कंटिन्यूसली होते ही रहता है और नए सेल्स प्रोड्यूस करते ही रहते हैं। दीज अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल मे लीड टू अ ट्यूमर दैट मे बी कैंसीरियस। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कैंसीरियस। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया कि सेल लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, नए सेल्स बना रहा है, and since there are 2 types of division, that is mitosis and meiosis. So what is mitosis and meiosis? Mitosis is a division which leads to the production of diploid cell, and meiosis is a division which leads to the production of haploid cell, जहाँ पे gametes बन रहे हैं। Okay, तो mitosis is mainly for the growth and development. इसमें half the number of chromosome नहीं हो सकता है, इसमें डबल सेट होना चाहिए, डिप्लॉयड नंबर। एंड meiosis produce gametes which is mainly for the sexual reproduction. We are starting with mitosis. Mitosis is called equal division. Why? I told you. मैंने वो अभी आउटलाइन ड्रॉ किया, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम कंटिन्यूसली सेम नंबर पास ऑन हो रहा है, बिकॉज माइटोसिस प्रोड्यूस 2 identical daughter cells and that too with same number of chromosomes. मतलब जितना मदर सेल में उतना ही दोनों डॉटर सेल में भी होता है। 46 है तो 46 दोनों डॉटर सेल में रहेगा। Getting it? That's why it is called equal division, because it produces 2 identical daughter cells with same number of chromosomes. Mitosis is divided into 2 steps, karyokinesis and cytokinesis. Karyo का मतलब होता है न्यूक्लियर डिविजन, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिविजन। 2 स्टेप्स में होने वाला है माइटोसिस। पहले न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन होगा एंड बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन इट टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। शॉर्ट फॉर्म PMAT. PMAT, प्रो, मेटा, एना एंड टेलो। टेलोफेज में जैसे ही क्रोमोसोम्स का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है।
यानी कि इफ यू सी इन शॉर्ट माइटोसिस के 5 फेजेस हैं, प्रो, मेटा, एना, टीलो एंड साइटोकाइनेसिस। प्रो, मेटा, एना, टीलो में न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम्स का डिवीजन, एंड फिर साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? यहाँ पे सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes. मैम हाँ। Yes, miss. मैम माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो रहा है हर जगह, तो मैम सारे के सारे कैरेक्टर्स डॉटर सेल्स में इसे तो दिखेंगे? हमारे बॉडी सेल सेम है ना प्रियम, इसे तो हमारे बॉडी सेल्स सारे सेम है। बॉडी सेल्स इसलिए हमारे सेम है ना। ओके मैम, और सिर्फ उनका फंक्शन वेरी करता है, सिर्फ उनका फंक्शन वेरी करता है। क्या बोल रहे हो प्रिया? मैम और मियोसिस में थोड़ा चेंज आएगा? तो मियोसिस में थोड़ा चेंज आएगा, एग्जैक्टली। ओके। और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ भी हो रहा है, हाफ हो रहा है ना बस उसमें, तो 46 का हाफ हो रहा है 23। अब अभी आर्यन तुम बताओ, मियोसिस में अगर 46 का हाफ हो रहा है 23, तो क्या वो डॉटर सेल्स वापस से सेल साइकिल कर पाएंगे क्या? 23 का नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए मियोसिस सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अंडरस्टूड? मियोसिस इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर गैमेट्स, एंड वो हम लोग अपने पूरे लाइफ में एक ही बार करते हैं। माइटोसिस टिल द एंड, टिल द डेथ ऑफ आवर लाइफ इट टेक्स प्लेस। माइटोसिस भले स्लो तो स्लो, वो होते रहता है। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त होता है, याद रखना। मैम